students, welcome to the science class. Today we will start our new chapter, that is chapter 8, Winds, Storms and Cyclones. In this chapter we will study about winds, storms and cyclones, how the kinetic energy of air, when the kinetic energy comes in air, it changes its forms. It becomes winds and after that storms and cyclones. So let's start this chapter. Now the different properties of air. You know that air is a mixture of several gases. Okay, and air, it is a homogeneous mixture of different gases. It contains 21% oxygen, 78% nitrogen and 1% other gases. 0.03% carbon dioxide, argon and dust particles, etc. Now among the properties of air, the most important property is that it occupies space, air occupies space and air exert pressure. Now air exert pressure. Here is an activity to explain that how air exert pressure. Take some water in a tin can, boil the water for a few minutes. Then close the lid tightly and pour fresh water over the can. The shape of the can get compressed. What you have to do, you have to take a tin can and you have to add boil the water. Okay, take some water in a tin can. You have to take a tin can and then take water in this, fill water in this tin can and then boil that water. After this you have to close the lid tightly. Okay, आपको उसका जो lid है उसको close कर देना है and then you have to pour fresh water over the can. You will find that its shape get compressed. आप जब उसको फ्रेश वाटर के नीचे रखोगे टिन कैन को, जिसके अंदर की गर्म पानी था, उसका शेप बदल जाएगा, compress हो जाएगा. Why? This is because when the water is heated, it changes into steam. Okay? जब आपने पानी गर्म किया था, वो steam में change हुआ था. Now when the can is cooled by pouring water, the steam in the can condenses and the pressure of the air inside the can becomes less. कि जब आपने उसको कूल वाटर के नीचे रखा, ठंडे पानी के नीचे रखा, तो अंदर स्टीम थी उसके, तो पानी ठंडा होने के कारण वो स्टीम दोबारा कंडेंस हो गई और वाटर में कन्वर्ट हो गई. ओके, और जिसके कारण क्या हुआ, एंड द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द कैन बिकम्स लेस, और जिसके कारण एयर प्रेशर वो दोबारा जो स्टीम थी दोबारा पानी में कन्वर्ट हो गई कंडेंसेशन के कारण वाटर ड्रॉप्स में. तो कैन के अंदर वाटर एयर प्रेशर कम हो गया और बाहर प्रेशर ज़्यादा हो गया. सो एयर प्रेशर बाहर होने के कारण बाहर से अंदर की तरफ से प्रेशर पड़ा और जिसके कारण वो कंप्रेस हो गया, उसका शेप बदल गया. सो द प्रेशर ऑफ द एयर आउटसाइड द कैन इज़ मोर एंड इट compresses द कैन. सो इन दिस वे दिस एक्टिविटी शोज़ दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, कि एयर प्रेशर लगाती है. ओके, now the next important property of air is that high wind speed causes low air pressure. जहाँ विंड की स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ एयर प्रेशर कम होगा. How high wind speed causes low air pressure? The wind blows from a region of high pressure to a region of low pressure. जहाँ विंड का एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, ज़्यादा प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है. सो दिस इज़ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एयर. High wind speed causes low air pressure. Now you have to perform an activity. What is this? Now hold a strip of paper about 20 centimeter long and 3 centimeter wide between the fingers and blow air over it. Okay, आपको एक स्ट्रिप लेनी है 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी, अपने फिंगर्स के बीच में रखनी है और उसमें एयर आपको ब्लो करनी है. पेपर स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप. पेपर स्ट्रिप जो होगी ऊपर की तरफ लिफ्ट होगी. क्यों? क्योंकि जब this is because when we blow air over the paper, the air pressure above the paper becomes less and the air pressure below the paper is more. So from the more air pressure to the lower air pressure, we know that air always move from the high pressure to lower pressure. When you blow air over the paper strip, high wind speed, so there is low air pressure develop हो जाएगा पेपर स्ट्रिप के ऊपर. और जबकि पेपर स्ट्रिप के नीचे हाई एयर प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगी, तो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो आपका पेपर स्ट्रिप ऊपर की तरफ जाएगा.
और वो पेपर स्ट्रिप को ऊपर की तरफ धकेलेगा. सो योर पेपर स्ट्रिप pushes the so the air pushes the paper strip upward in upward direction. Now next there is one more activity to clear this concept. You have to take two balloons of the same size. Pour some water in between in both the balloon. Okay, दो बलून लीजिए और दोनों सेम साइज़ के, और उनमें उसको फुलाकर उसमें थोड़ा पानी डालिए. ओके, उसमें पानी डालिए, उसको थोड़ा उसमें एयर ब्लो करो. नाउ ब्लो एयर इनटू द बलून. पानी डाला, अब उसको ब्लो करो दोनों बलून्स में एयर भरो. एंड टाई देम विद द थ्रेड्स. दोनों को थ्रेड से टाई करो. एंड हैंग देम ऑन ए स्टिक अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट. उसके बाद में उसको थ्रेड से बांधने के बाद में दोनों को एक स्टिक पर हैंग कर दो. ठीक है, टांग दो, बांध दो अच्छे से धागे की सहायता से. और दोनों बलून्स के बीच में 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए. तो आपने क्या किया, दो बलून लिए, उनमें आपने पानी भरा थोड़ा थोड़ा बराबर मात्रा में. उसके बाद दोनों को एयर ब्लो करी. फिर उसके बाद में दोनों को एक स्टिक थ्रेड से टाई किया और थ्रेड को आपने एक स्टिक पे बांध दिया और दोनों बलून्स के बीच में 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखी. नाउ ब्लो एयर बिटवीन द टू बलून्स. दोनों बलून्स के बीच में आपको अब एयर ब्लो करनी है. बीच में जो स्पेस है 8 से 10 सेंटीमीटर का जो स्पेस है उसके बीच में आपको एयर देनी है, ब्लो करनी है, एयर डालनी है. नाउ द बलून्स विल बी पुश्ड टूवर्ड्स ईच अदर. आप क्या देखोगे, दोनों बलून्स एक दूसरे की तरफ आएंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे. पुश टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आएंगे. वाई? क्योंकि जब आपने अपने मुंह से एयर निकाली, ब्लो किया एयर, तो हाई विंड स्पीड हुई. विंड की स्पीड ज़्यादा होने से दोनों बलून्स के बीच में लो एयर प्रेशर डेवलप हो गया. एयर का प्रेशर कम हो गया दोनों बलून्स के बीच में, क्योंकि हाई विंड स्पीड इज़ अकम्पेंड बाय लो एयर प्रेशर. जहाँ विंड की स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ एयर प्रेशर क्या होगा, कम होगा. तो एयर प्रेशर कम हो गया. जबकि दोनों बलून्स के बाहर साइड में एयर प्रेशर ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ एयर प्रेशर बाहर से जो है अंदर की तरफ जो है बलून्स को धकेलने लगा. इसलिए दोनों बलून एक दूसरे के नज़दीक आ गए. दिस इज़ बिकॉज व्हेन वी ब्लो एयर बिटवीन द बलून, द एयर प्रेशर बिटवीन द बलून बिकम्स लेस and the air pressure outside the balloon is more. Okay, the air pressure outside the balloon कैसा है, ज़्यादा है. So the balloon is more, so the air outside pushes the balloon towards each other. तो बाहर जो एयर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वो एयर ने क्या किया, बलून को एक दूसरे की तरफ धकेलने लग गई. ओके, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. नाउ सिमिलरली एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. एयर गर्मी से तो एक्सपेंड होती है, फैलती है, और ठंड से कम टेम्परेचर पे एयर जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है. सो दे हेयर इज़ एन एक्टिविटी. टेक अ बॉइलिंग ट्यूब एंड स्ट्रेच ए बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब. आपको बॉइलिंग ट्यूब लेनी है और बॉइलिंग ट्यूब के नेक पे आपको बलून स्ट्रेच करके लगाना है. पोर सम हॉट वाटर इन ए बीकर एंड इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब इनटू द हॉट वाटर. सो बॉइलिंग पानी को गर्म करना है आपको और एक बीकर में आपको गर्म पानी रखना है. अब उस बॉइलिंग ट्यूब को जिसके कि नेक पर आपने बलून लगाया है उसको आपको उसमें गर्म पानी में उस बॉइलिंग ट्यूब को डालना है. व्हाट विल यू फाइंड? नाउ यू विल फाइंड दैट द बलून गेट इन्फ्लेटेड. आप देखोगे बलून जो है फूल जाएगा. इन्फ्लेट मतलब फूलना. ठीक है, उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा. नाउ अब दूसरी बार आप क्या कीजिए, देन इंसर्ट द ट्यूब इनटू अनदर बीकर कंटेनिंग कोल्ड वाटर. अब उसी ट्यूब को आप दूसरे बीकर में लीजिए जहाँ पर आइस कोल्ड वाटर है, आइस का वाटर है, एकदम ठंडा पानी है, उसमें आप डालिए. नाउ द बलून गेट डिफ्लेटेड. आप देखो बलून जो डिफ्लेट हो जाएगा, उसका साइज़ और छोटा हो जाएगा. उसका साइज़ छोटा हो जाएगा, जो पहले फूला था गर्मी से, गर्म पानी से, अब वो एकदम डिफ्लेट हो जाएगा, मुरझा जाएगा. ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गर्म पानी से क्या हुआ, पानी स्टीम में कन्वर्ट हो गई, एयर में कन्वर्ट हो गई, और वो एयर अंदर एयर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वो बलून के अंदर एयर भर गई और उसका साइज़ बड़ा हो गया. लेकिन ठंडे पानी में जो थोड़ी बहुत एयर थी वो भी दोबारा जो कंडेंस हो गई वाटर ड्रॉप्स में, तो एयर प्रेशर कम हो गया, इसलिए जो बलून था वो डिफ्लेट हो गया. ओके, सो इससे पता चलता है कि गर्म पानी से एयर फैलती है. ओके, और ठंडे पानी में एयर जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है. ठंडे पानी से एयर कॉन्ट्रैक्ट होगी, गर्म पानी से फैलेगी, एक्सपेंड होगी.
Now next important property of air is warm air is lighter than cold air. Warm air is lighter than cold air. Warm air जो है वो कोल्ड एयर से हल्की होती है, गर्म एयर ठंडी एयर से हल्की होती है. नाउ इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझने के लिए हेयर इज़ एन एक्टिविटी है. वार्म एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर, सो वार्म एयर राइजेज अप. व्हेन वार्म एयर राइजेज अप एट ए प्लेस, द एयर प्रेशर रिड्यूसेस एंड कोल्ड एयर मूव्स इन टू टेक इट्स प्लेस. वार्म एयर जो है वो ठंडी एयर से लाइटर होती है और इस वजह से वार्म होकर वो ऊपर उठने लगती है. नाउ जो ऊपर उठने लगती है, राइज हो जाती है ऊपर, उस जगह को भरने के लिए वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि वार्म होकर वो ऊपर उठ गई, वहाँ एयर प्रेशर कम हो गया, इसलिए आसपास की ठंडी एयर जो है उस जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी एयर वहाँ पर आ जाती है. ठीक है. नाउ हेयर इज़ एन एक्टिविटी टू शो दैट कि वार्म एयर लाइटर होती है, उसके लिए एक एक्टिविटी है. टेक 2 empty paper cups of the same size, hang them in an inverted position from the 2 ends of a stick. Tie a thread in the middle of the stick and hold the thread. आपको 2 पेपर के कप्स लेने सेम साइज़ के और उनको इन्वर्टेड पोजीशन में, ऐसे उल्टी पोजीशन में आपको एक लकड़ी से या कोई भी एक आयरन जो स्टैंड है उससे इस तरह से टांग देना आपको. उनमें धागा बांध के बीच से उसको दोनों में, और उस धागे को फिर आपको एक स्टैंड से बांध देना है और बीचों बीच उस स्टैंड के आपको एक थ्रेड भी बांधना है जिससे कि आप उस थ्रेड से उसको पकड़ सको. नाउ टाई ए थ्रेड इन द मिडिल ऑफ द स्टिक एंड होल्ड द थ्रेड, और उस थ्रेड से उसको पकड़ लो. नाउ अब आपको क्या करना है, कीप ए बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द कप. किसी भी एक कप के नीचे आप एक कैंडल को जला दो. ठीक है. और एक कप के नीचे आपको कैंडल चलानी, थोड़ा नीचे उसके. नाउ व्हाट विल यू फाइंड आफ्टर सम टाइम? यू विल फाइंड दैट द कप बिलो विच द कैंडल यू लाइटेड द कैंडल इट राइजेज अप. इसके नीचे आपने कैंडल जलाई है, वो कप ऊपर की तरफ उठने लगेगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा. ठीक है. और दूसरा कप नीचे की तरफ रहेगा. क्यों? दिस इज़ बिकॉज द वार्म एयर इज़ लाइटर एंड राइजेज अप एंड पुशेज द कप. क्या होगा, जो आपने कैंडल से उस कप के नीचे कैंडल जलाई तो उसके अंदर जो जितनी भी आसपास एयर थी वो गर्म हो गई. गर्म होने से वो एयर हल्की हो गई, हल्की होने से ऊपर को उठने लग गई. ओके. और कप भी हल्का हो गया क्योंकि उसकी एयर आसपास की गर्म हो गई और इस वजह से वो ऊपर की तरफ उठ गया. ठीक है. इससे और जो हल्की एयर ने उसको ऊपर की तरफ उठा दिया. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि गर्म एयर जो है, वार्म एयर, वो लाइटर होती है और लाइटर होने के बाद में ऊपर की तरफ उठने लगती है. ओके. सो स्टूडेंट, दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर which we have discussed by considering or by showing the various activities. These are very simple activities and you can easily perform these activities at your home. Okay. So let's try some of the activities at your home and clear your concepts. Okay students, thank you.